Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Let us continue English lesson now across the Saudi Desert today on 7th of July 2020. Uh, Page number 98, para lost. The next few hours, passed in a daze. He was mortally secured that Allah Khan may die of fatigue. To ease him of his burden, he now started walking beside him. Within an hour, agonizing cracks appeared on his heels. Under a hot tin sky, the run was blazing now, throwing up white needles which hurt the eyes. And as the run palpitated, it haunted him from its mirage. Hours of wandering followed as if he was in a trance. Then light thinning away, and an hour or two later, dusk and a thin plume of smoke rising from a dung fire. Allah be praised, he was now within range. Yes, students. The next few hours passed in a daze. The next few hours they passed in a daze in a confusion. It means Najab, he was in a confusion. He was mortally secured. He was mortally means dreadfully or extremely. Secured means afraid. So he was extremely afraid that Allah Raka may die of fatigue. The camel may die of वो मर जाएगा because of fatigue. Fatigue means tiredness. वो थकान की वजह से थकावट की वजह से मर जाएगा. उसे ये डर था. To ease him of his burden. उसका बोझ कम करने के लिए उसमें आसानी ease means आसानी करने के लिए he now started walking beside him. अब नजब ने उसके एक तरफ साथ साथ चलना शुरू किया. Within an hour, एक घंटे के अंदर, agonizing, परेशान करने वाली, agonizing, annoying और painful. Agonizing cracks appeared on heels. Cracks पैदा हुए heels एड़ियों पर. Under a hot tin sky. It means the sky was very hot. It was just like a tin. When tin is hot, just like it was hot. वो अब इस गर्म बहुत ही गर्म आसमान के नीचे चल रहे थे. The run was blazing now. Run means the desert. It was now blazing. ये चमक रहा था. It was now blazing. Now ये चमक रहा था. Throwing up white needles. यानी ये ऐसे चमक रहा था गर्मी से कि जैसे सफेद सुइयां फेंक रहा था. इतना ये गर्म था. It means it was painful, which hurt the eyes. इससे आंखों को तकलीफ पहुंचती थी. And as the run palpitated means shivered or burnt. It means as the desert burnt or shivered with heat, palpitated, it haunted him. इसने उसको परेशान किया. With its mirages के साथ जो मतलब रेगिस्तान में धोखा लगता है गर्मी की वजह से कि शायद उधर पानी है फिर वहाँ जाते हैं वहाँ फिर पानी नहीं होता है तो उसको कहते हैं उर्दू में सराब इंग्लिश में इसको कहते हैं मिराज. ये दरअसल रोशनी का एक धोखा होता है. Hours of wandering followed. घूमने के घंटे बाद आप आगे थे. As if he was in a trance, जैसे कि वो in a trance था. Trance means वजद और it means a state of meditation. यानी वजद की कोई हालत, रियाज करने की कोई हालत उसमें वो थे. Yes students. Then light thinning away. तब अब रोशनी कम होने लगी. Thin माने पतला. Thinning means पतला होना या कम होना. रोशनी अब कम होने लगी. And an hour or two later, और एक या दो घंटे बाद, dusk
यानी शाम का जो टाइम, चटपटी का जो टाइम होता है, एंड ए थिन प्यूम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, और एक पतला प्यूम, प्यूम को ताज भी कहते हैं, प्यूम को वो जो मुर्गे की वो कलगी होती है उसको कहते हैं प्यूम। ऐसे ही एक धुआं उठने लगा ये डंक फायर से, जो गोबर की आग थी उसे। अल्लाह भी प्रेज, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह की तारीफ की जाए। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, वो अब टारगेट में थे। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, वो अब टारगेट में थे। हाँ, ही वेटेड फॉर द नाइट टू डिसेंड, वो इंतजार करता था कि व्हेन विल नाइट कम, यानी कब रात आएगी। डिसेंड अपोजिट इज डिसेंड। एंड देन स्ट्रक आउट हॉबलिंग ऑन हिज टोज, अब ही नाउ ही लेफ्ट, अब उसने छोड़ दिया, स्ट्रक मीन्स लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, तर्क किया, हॉबलिंग ऑन हिज टोज, अपने पाँव की उंगलियों पर रुक रुक कर चलना वो उसने छोड़ दिया। फॉर दिस डेजर्ट ओडेसी, ओडेसी हैड कॉस्ट इन हील्स, क्योंकि जो ये डेजर्ट ओडेसी, ओडेसी मीन्स लॉन्ग जर्नी, जो ये रेगिस्तान की लंबी सफर थी, उसको उससे उसके जो हील जो ईडिया है उनको तकलीफ पहुंची। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, ही वॉज एट द क्लोज सेलर्स डोर, वो जो लौंग बेचने वाला या मसाला बेचने वाला उसके दरवाजे पर था। यस स्टूडेंट्स, Fatima rose from her bed like a panic-stricken dove as he called out her name softly through the window bars. It took some anxious moments for it to sink in that it was Najab. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. Yes, Fatima rose from her bed like a panic-stricken dove. फातिमा उठी अपने बिस्तरे से, like a panic-stricken dove. Panic-stricken means very frightened. Dove means here. So she rose from her bed like a very frightened deer. एक घबराई हुई हिरनी की तरह. You students, you know here it is a simile because the word like is used. कैसे उठी वो? एक घबराई हुई हिरनी की तरह. As he called out, जैसे नजब ने उसे पुकारा. Now her name, उसका नाम, softly, धीमी आवाज में, through the window bars, जो खिड़की की सलाखें थी, लोहे की सलाखें, उनमें उनके बीच. It took some anxious moment for it to sink in. इसको कुछ टाइम लग गया. क्या टाइम? For some, it took some, anxious means जहाँ फिक्र थी, moments लम्हा, for it to sink in that. Sink in means slowly began. She began slowly. यानी उसने आहिस्ता आहिस्ता वो उठी, ये सोचने के लिए that it was नजब, कि ये नजब ही थे या ना थे. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. अब ये नरेटर, लिखने वाला लिखता क्या कहता है? उसकी आंखें, उसकी आंखों ने क्या किया? lit up, रोशन किया, the dark of the room, कमरे के अंधेरे को. As she opened the door, जैसे जो ही उसने दरवाजा खोला. Here she refers to Fatima. Yes, next para. 2 hours before dawn, सहर से, early morning से 2 घंटे पहले, Kalisha was woken up by the beat constable banging on the door. A smuggler has come across the run. Kalisha, Kalisha, you wouldn't know anything about him, would you? 2 hours before dawn, सहर से 2 घंटे पहले, Kalisha was woken up. Kalisha जगाया गया. कैसे? By the beat constable. जब beat constable ने क्या किया? Banging on the door. Bang means strike, खटखटाना जोर से. Knock loudly. जब उसने दरवाजे पर जोर से खटखटाया. किसने? बीट कांस्टेबल मीन्स जो सिपाही इस पे ड्यूटी पे थे. A smuggler has come across the run, Kalisha. उसने कहा कैलिशा को, फातिमा के बाप को, एक स्मगलर आए हैं across the run, डेजर्ट के थ्रू आए हैं. You wouldn't know anything about him. आप मत जानते हैं कुछ इसके बारे में. Would you, क्या आप जानते हैं? Now let us see what Kalisha says.
Kasam tumhari, not a sparrow has entered the house or the village. Even the dogs have not been barking tonight. Then he added with a knowing wink, why should a smuggler come to me? हाँ, यहाँ जो कैली शाह है उसने थोड़ी चालाकी दिखाई. क्या कहा उसको? कसम तुम्हारी, तेरी कसम. नॉट ए स्पैरो एंटर्ड द हाउस, मेरे मकान में एक चिड़िया भी दाखिल नहीं हुई. और द विलेज या गाँव में. इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट, आज रात कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे. देन ही एडेड विद अ नोइंग विंक, उसने आंख मार के कहा, पलक झपकने से कहा, जो वो जानता था उसे मजीद कहा, व्हाई शुड ए स्मगलर कम टू मी, एक स्मगलर क्यों मेरे घर आए. बट द लॉ वॉज नॉट एम्यूज्ड, लेकिन जो कानून है ये दिल बहलाने के लिए नहीं होता है. कैलिशा कैलिशा, ही सेड, हु सेड, the constable on the beat constable. He said sardonically, your belly is stuffed dull, full with silver. It would outweigh even the dirt in your heart. Yes. The beat constable said, how he said? He said sardonically. Sardonically means bitterly. क्या कहा उसने? Your belly is stuffed full with silver. आपका पेट पूरी तरह भरा हुआ है चांदी से. हाँ, ये तमस्सकुर के तौर पर उसने कहा. It would outweigh even the dirt in your heart. जो आपके दिल में जो गंदगी है, dirt है, उसे भी ये फिर भारी हो जाएगा. What will outweigh? The law, the hands of the law. Yes, the constable's words rattled like a sack of empty cans in his head and prevented him from sleeping. The constable's words, जो कांस्टेबल के अल्फाज थे, बातें थी. rattled, R-A-T-T-L-E-D, rattled means produce tapping sound, यानी वो थपथपाने की आवाज पर पैदा कर रहे थे उसके दिमाग में, उसके जहन में. किसकी तरह? जैसे अगर खाली जो कैन होंगे उनको बजाया जाए, वो बोरी में रखे जाए तो कैसी आवाज होती, ऐसी आवाज अब उसके जहन में गूंजती है. किसके जहन में? कैली शाह के जहन में. एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उससे उसको नींद नहीं आई. Oh, now and let us see what is happening in the room. You have a guest, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning. It is Najab. He stayed the night in the cattle shed. For a moment he was terrified. A smuggler in the house, the police prowling all around, and he didn't even know of it. His meeting with Najab had been brief. The wretched fellow had brought no tender leaf. Now, Fatima says to his father, Fatima कहती है अपने बाप को, you have a guest, तुम्हारा एक मेहमान है. कब कहा? As she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning. जब यूं ही फातिमा ने लाया अपने बाप को दूसरी सुबह गरम उबलते हुए दूध का एक गिलास. तो गेस्ट कौन है? इट इज नजब. गेस्ट नजब है. ही स्टेड द नाइट एट द कैटल शेड, वो रात को ठहरे कैटल शेड में. फॉर ए मोमेंट, एक लम्हा के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए. ही वॉज टेरिफाइड. कैलिशा गॉट टेरिफाइड, वो खौफजदा हुई. ए स्मगलर इन द हाउस, क्या कहता आप अपने साथ ही? ए स्मगलर इन द हाउस, घर में स्मगलर. द पुलिस प्राउलिंग ऑल अराउंड, पुलिस सर्चिंग ऑल अराउंड. And he didn't even know of it, वो इसके बारे में जानता भी नहीं. His meeting with Najab had been brief. अब कैलिशा की मीटिंग नजब के साथ मुख्तसर है, short. The wretched fellow had brought no tender leaf. अब ये उसका अंदरून कहता है, किसका? कैलिशा का, कि ये wretched fellow, ये निकम्मा, ये बदबख्त, फिर भी उसने टेंडर लीफ नहीं लाए. हाँ, yes. First you come unannounced. हाँ, ये किसे कहता है? अब नजब से. First you come unannounced, dragging the police behind you, and then I find you have come with nothing. Yes, trading with you is going to be a dead loss, son, with the cops on your back and your hands empty. These are words of Kalisha. क्या कहते हैं वो नजब से? First
you come unannounced, पहले आप बगैर इत्तला के आते हैं. Dragging the police behind you, ड्राइविंग पुलिस बिहाइंड यू, अपने पीछे किसको खींचते हैं, पुलिस को ड्रैग करते हैं. एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद, और मैंने देखा आपको, आपके हाथ कुछ नहीं. ट्रेडिंग विद यू, ट्रेड मीन्स चलना. ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी अ डेड लॉस. सन, बेटे, आपके साथ चलना ये सरासर नुकसान है. डेड लॉस, सरासर नुकसान. विद द कॉप्स, कॉप्स हियर मीन्स पुलिस, विद द कॉप्स ऑन योर बैक, आपके पीछे पीछे पुलिस. And your hands empty, और तुम खाली हाथ. Yes. Najib thought that Kelly Shah's waistcloth with its black and white checks looked like a chessboard. He would have to make his moves carefully. He showed the gold bracelet. I have come for the clothes, Chacha John, and I shall pay in gold. These are words of Najib. Najib ने सोचा, Najib thought that Kelly Shah's waistcloth in Urdu means कमरबंद, उसका जो कमरबंद था, with its black and white checks, उसका जो चक था, it was made of black color and white color. It looked like a chessboard. Here again a simile. ये एक chessboard की तरह लगता है. जैसे chessboard में black squares होते हैं, white squares होते हैं, इसी तरह ये लगता था. He would have to make his moves carefully. हाँ, Najib thinks, अब उसको, here moves is used as noun, उसको क्या करना है, उसके moves, उसके जो चक्कर हैं, इधर उधर घूमना, हाँ, ऐसा उसको क्या करना है, हाँ, होशियारी से. He would have to make his moves, उसको अपने हरकत करने हैं, carefully, होशियारी से. He showed the gold bracelet, अब उसने चालाकी की. He showed the gold bracelet. He showed, उसने दिखाया कंगन या कड़ा या चोरी जो सोने की बनी थी, वो उसने दिखाई. इसको दिखाई कैलिशा को. क्या कहा उसको, आई हैव कम फॉर द क्लोथ, चाचा जॉन, मैं लौंग के लिए आया हूँ, मसाले के लिए. आई शैल पे इन गोल्ड, मैं उनके लिए अदा करूंगा इन गोल्ड, सोने में. Now, the next 2 days, Kalisha was busy buying clothes and arranged to get Allah Raka grazed a few miles away by a cowherd. Otherwise, the presence of strange camel would have let loose a babel of tongues. Najib slept in the cattle shed in the evening and slipped into the Fatima's room late at night. The next 2 days, दूसरे जो 2 दिन थे, कैलिशा was busy, वो मशगूल थे, buying clothes, वो लोग मसाला खरीद रहे थे, and arranged to get Allah Raka grazed, और इंतजाम कर रहे थे अल्लाह राखा यानी केमल को कि उसको चरावाई, यानी उसको घास खिलाए. फ्यू माइल्स अवे, चंद मील दूर. बाय होम, बाय अ काउहर्ड, एक गवाला के जरिए, गायों की जो गाय होती है उनकी परवरिश करने वाला. अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंज केमल वुड हैव लेट लूज द बेबल ऑफ टंग्स. दूसरी सूरत में अगर वहाँ स्ट्रेंज जो अजनबी यानी जो गैर का केमल हो उसको देखेंगे तो उसे क्या हो जाएगी, उसे बहुत शोर मचेगी. यानी एक ही नहीं, a babel of tongues means many people talking together, यानी बहुत सारे लोग एक साथ बात करें, बक करें. तो इससे हो जाए, अगर कोई किसी गैर के कैमल को देखेंगे, ऊंट को देखेंगे तो उसे शोर मच जाएगी, यानी ये बात आम हो जाएगी. क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया. नजब slept in the cattle shed in the evening, नजब सोता था कैटल शेड में शाम को. and slipped into Fatima's room late at night, और घुस जाते थे फातिमा के कमरे में देर रात को. Yes, next page. They want me to marry Mahfuz Ali, she told him. He is related to us from my mother's family. The way he stammers, you should hear him. Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him. It is just a step removed from being hounded like a mad man and pelted with stones. Now Fatima says to Najib late at night. What she says to him? They want to marry me Mahfuz Ali. वो मेरी शादी करना चाहते हैं महफूज अली के साथ. Who is Mahfuz Ali?
ही इज रिलेटेड अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, उसका रिश्ता हमारे साथ माँ के जो घराने हैं वहाँ से है। हाँ, सो दे हैव मैटरनल रिलेशनशिप, द वे ही स्टैमर्स, जिस तरीके से वो हिकलाता है, यू शुड हियर हिम, आप उसको सुनना चाहिए। Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him. Urchins means mischievous boys, शरीर लड़के। वो उसकी नकल करना शुरू करते हैं। कब? Mimicking means नकल करना, imitating, copying. The moment, उसी वक्त, they set eyes on him, जब वो उस पर नजर डालते हैं, जब उसको देखते हैं तो वो उसकी नकल करना शुरू करते हैं। It is just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stones. Here again a simile. ये बिल्कुल एक स्टेप अगर कम किया जाए, एक कदम कम किया जाए फ्रॉम बीइंग हाउंडेड, किसे? हाउंडेड हियर मीन्स सॉट और हैरासर, लाइक ए मैडमैन, जैसे किसको? एक पागल को क्या किया जाता है? सताया जाता है। एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और जिस पे संगबाजी की जाती है। ये बिल्कुल उसी जैसा है ये मामला। किसका हकलाना? महफूज अली का, उसकी स्टैमरिंग करना, और ऐसा ही जैसे एक पागल आदमी को नकल किया जाए, हरास किया जाए, तो फिर उसकी संगबारी की जाए, ऐसी है। हाँ, नाउ what let us see what Najib says. Has it never occurred to you to take a ride on Alarafa across the run? She had kept silent, and silence was assent. It was as simple as that. Now Najib says, क्या आपको कभी ख्याल नहीं आया है कि आप एक सवारी करें अल्लाह राका, यानी कैमल पर? किसके पार? रन, जो डेजर्ट है, उसके पार। She had kept silent. फातिमा, उसने खामोशी की। And silent was assent. और जो चुप साजी या खामोशी, ये कंसेंट थी। assent means consent, मंजूरी। यानी कहते हैं जो बड़ी लड़की होती है उसकी खामोशी इनकार या आंकार होती है, मंजूरी होती है। It was as simple as that. ये बिल्कुल सीधी सादी बात है। Next para. Yes, the first lunch of the camel next evening and they were off. हाँ, first lurch, LURCH, lurch means sudden movement, अचानक। हाँ, क्या कहते हैं? कैमल का पहला ही जो पुश था दूसरी शाम को, और वो दूर पहुंचे। They were off, यानी वो दूर थे। He waited with his camel at the outskirts of the village, and she had slipped out after her father had started snoring. Yes, वो इंतजार कर रहे थे अपने केमल के साथ गांव से बाहर। आउटस्कर्ट्स, उर्दू में किसे? मजाफात, गांव के मजाफात, यानी गांव के बाहर जो हिस्सा है वहाँ। एंड शी हैड स्लिप्ड आउट, एंड शी हु फातिमा, शी हैड स्लिप्ड, वो निकली थी चुपके चुपके से। आफ्टर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, जब उसके बाप ने खराटे मारना, यानी उसको जबरदस्त नींद आई थी और उसने खराटे मारने शुरू की उस वक्त। द मोमेंट वाज टू बिग फॉर देम, ये लम्हा उनके, टू बिग मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज मोमेंटस, मोमेंटम, ये उनके लिए एक अहम टाइम था। एंड दे डिड नॉट स्पीक, उन्होंने बात नहीं की। कहते हैं ये मोहब्बत की दुनिया निराली है, यहाँ कलाम से हर कुछ इशारों से काम चलता है। इट वॉज ओनली इन पासिंग, हाँ, ये सिर्फ गुजरने में थी। शी थॉट ऑफ द विलेज, जब वो निकल गई यहाँ से, उसको ख्याल आया अपने गांव से। शी वॉज लीविंग फॉर गुड, इसको ये ख्याल आया कि वो भलाई के लिए गांव को छोड़ रही है। As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought. As for quit means leave, छोड़ना। हाँ, अब जबकि एक गांव को छोड़ना और एक कंट्री को छोड़ना, दूसरी कंट्री में दाखिल होना, उसके बारे में उसने सोचा नहीं। She never had a thought. Why did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both
physically and symbolically the two countries. Yes, as for quitting one country, एक मुल्क को छोड़ना एंटर करना तो दूसरे में जाना दाखिल होना, she never gave it a thought, उसने इसको कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, यानी सोच भी नहीं लगाई, सूझा भी नहीं. Why did one have the time? कब किसी को वक्त होता है फॉर पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए, when one was eloping with one Islam, जब कोई भाग रहा है अपने महबूब के साथ या महबूबा के साथ, एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट, और डेजर्ट को क्रॉस कर रही होंगे. हाँ, वी डिवाइडेड बोथ फिजिकली एंड सिंबॉलिकली, जो दोनों को अलग अलग कर रही थी, तकसीम कर रही थी, फिजिकली जिस्मानी तौर भी एंड सिंबॉलिकली अलामती तौर भी, द टू कंट्रीज यानी दो मुल्कों. फॉर हर मीन्स फॉर फातिमा, इट मीन्स जस्ट ए शिफ्ट इन डायलेक्ट. इसका मतलब सिर्फ क्या था, शिफ्ट मीन्स चेंज, डायलेक्ट मीन्स जबान की जो मुकामी शक्ति सूरत होती है, लोकल फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज. फातिमा ने उतना ही सोचा कि ये एक तब्दीली थी जो जबान की मुकामी शक्ल है, मुकामी सूरत है, स्पोकन फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज, उसमें इतनी तब्दीली. ए समीर ऑफ कच एडिड. हाँ, ए समीर, समीर यू नो, समीर मीन्स डिफेम. ए समीर ऑफ कच, कच एडिड, अगर इसमें ऐड किया जाए समीर, यानी किसके, समीर डिफेम बदनामी, कच की एडिड, एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी, सैंड पेपर अवे, और थोड़ा सिंधी जो है इसको स्मूथ किया जाए. हाँ, यानी वो वहां से भाग गए. ये स्टूडेंट्स, एंड द camel lurched and bumped onwards. अब जो ऊंट है, it lurched, it bumped. Lurch means steady movement, steadily it walked, steadily it ran. And the camel lurched and bumped. And bumped means pushed. Onward, ये ऊंट जो क्या कर रहा था, ये आगे आगे दौड़ रहा था, चल रहा था. नजब ड्रो हिम हार्ड, नजब ने उसे खींचा और जबरदस्त. बाय द टाइम दे रीच्ड सरबिला, जिस वक्त वो सरबिला एक जगह का नाम पहुंचा, शी वॉज एग्जॉस्टेड. हु वॉज एग्जॉस्टेड? शी, फातिमा, एंड फेल असलीप, और उसकी नींद आ गई. Now next para, she woke up in the afternoon to find the sky overcast. वो आफ्टरनून को उठी, उसने देखा कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ओवरकास्ट, छाए हुए. It turned ominous in the evening, with depth upon depth of dark-edged nimbus gathering at the summons of a storm god. Another night they journeyed facing the wind, which hurled the sand in their faces. As they neared Khalda, the thunder started rolling and reverberating across the sky. Yes, she woke up in the afternoon to find the sky overcast. वो जागी आफ्टरनून को, उसने देखा ये स्काई जो आसमान है ये बादलों से ढका हुआ है. It turned ominous. अब ये नेक शुगुन में तब्दील हुआ. कब? In the evening, शाम को, with depth upon depth of dark edged nimbus. जब क्या थी, एक था, दूसरी था, तीसरी था, किसकी थी? Nimbus. Nimbus means clouds. Gathering at the summons of a storm god. ये जैसे जमा हो रहे थे. Summon means call. Call किसकी थी? Storm god. क्योंकि ये उनका अकीदा है कि जो देवता है किसका? तूफान का, वही उसी के हुक्म से जमा हो रहे. Another night, अब दूसरी रात जो थी, they traveled facing the wind. उन्हें सामना करना पड़ा, मुकाबला करना कर किसका? विंड का. You know what is wind? Air in motion is called wind. Hardly flowing air is called wind. Which hurled the sand, which blew the sand in their faces. उनके चेहरों में ये धकेलता था, फेंकता था रेत. As they neared, near उसकी वो फॉर्म है neared.
As they reached near Khawda, the thunder started rolling. जो गरज थी वो गरजने लगी and reverberating across the sky and echoing और गूंजने लगी पूरे आसमानों के अंदर. Yes, dear students, 3 times during the night Aftab had opened the door thinking his son had come. 3 बार रात को आफ्ताब ने, आफ्ताब is Najab's father, उसने खोला था दरवाजा, सोचा शायद उसके बेटे आए होंगे. But it was only the wind knocking against the door. लेकिन ये सिर्फ हवा जो थी, हवा ही दरवाजे को खटखटाती थी. This time the banging was persistent. इस वक्त ये दरवाजे को banging करना, knocking aloud, जोर से मारना दरवाजे को, it was persistent, it was consistent, it was continuous. When he unlatched the door, he found Allah Raka shying away from a streak of lightning. जब उसने दरवाजे की चुटकी खोली, unlatched the door, opened the door, he found Allah Raka, उसने Allah Raka यानी केमन को पाया, देखा, shying away from a streak of light. ये चमक रहे थे दूर, किससे, जो लाइटिंग यानी जो बिजली आ रही थी, और कश्मीर में कहते हैं वज़मला जैसा स्ट्रीक ऑफ लाइट. ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग. ह्यूज, भारी बड़े आइसोलेटेड अलग अलग कतरे गिर रहे थे बारिश के. किकिंग अप द डस्ट, वो किक अप कर रहे थे गर्द को, जैसे वो लात मार रहे थे गर्द को. आफ्टर steeled himself. Steeled himself means he faces something difficult. He faces something. Steeled means made tough. यानी उसने अपने आप को जरा सख्त बनाया, या फिर कहा he would not allow any relief, वो कोई भी आराम नहीं देगा. Any expression of joy, खुशी की कोई भी कैफियत, to show on his face, कि वो इसका इजहार करे अपने चेहरे. It means he presumed to be serious. Against whom? Against his son. Now, what he says to his son, son, have you brought anything? Oscar, an edge of iron deliberately introduced into his voice. क्या कहा उसने? He asked in edge of iron. It means, क्या कहेंगे उर्दू में, एक रुकावट, a halt, deliberately, जानबूझ के, introduced into his voice, जो उसने अपनी आवाज में बनाई, मुतारिफ की. Son, क्या कहा? Son, have you bought anything? क्या आपने कुछ लाया है? Now, let us see what is Najab's answer. Yes, replied Najab, as he assured Fatima him. Najab ने कहा हाँ, यूं ही उसने फातिमा को अंदर दाखिल किया. Assured in means enter, usher in means enter festively, खुशी से त्योहार की तरह दाखिल करना. उसने दाखिल कर दिया फातिमा को अपने मकान में. Now, the rain stormed down, बारिश का तूफान कम हो गया. And swept 3 years of drought, और उड़ा के ले गया, साफ करके गया जो खुशकसाली के 3 साल थे. So Fatima's coming, Fatima's arrival, it was also a good omen for their home and for their locality. Dear students, I feel today it